Good evening. I am Dr. Sunny Jani. He's Dr. Jatin Mehta. We have prepared an emergency first aid zone. In this zone, we are going to present how to do first aid in common emergencies, common household emergencies like epistaxis, bleeding, fracture, sprain, or cardiac arrest. Because cardiac arrest is the emergency that in which if you are doing the first aid on the spot, then you can survive person or survival chances of the person will drastically improve. So in CPR you have to just respond as fast as possible, and how to do CPR, what is the depth of the chest compression, what is the breathing, we will demonstrate all these things in this. In a fracture part we will demonstrate that spine board and cervical collar, importance of the spine protection, importance of the immobilization. This is the AED machine in which we will demonstrate how to give shock in case of the cardiac arrest. So this is a zone about all the common emergencies that happen in the day to day, and that will help the people for better response in emergencies. Thank you. सो डॉक्टर, जो हमारे दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कंप्रेशन रेट रहता है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वो कितना होना चाहिए. Compression rate is 30:2 means 30 chest compression should be done, and 2 बार हमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना है. This compression is should be 2 to 2.5 inches in depth, and fast is means what is the speed, then it is 100 per minute. So this speed should be 100 per minute. So this is the very important in case of the emergencies. ओके डॉक्टर, थैंक यू. डॉक्टर साहब, हेल्दी बचपन, तो इस हम लोग क्या चीज़ शो कर रहे हैं? Sir, actually in Healthy Bachpan, we are spreading the awareness about the vaccination. Vaccination is a thing which saves the millions of the lives per year, and it is the most widely recognized health intervention which is widely successful, and it is most cost effective. So in our center we have all the vaccines available with us. So we are giving it to every child who is comes to us. And here we have presentation for which are the vaccine preventable diseases which can be prevented by a single vaccine. So that is the presentation. And the second thing is that we have antibiotic misuse is how to prevent it. And simple viral infection doesn't require any antibiotics, and antibiotics are only effective against the bacteria. It has no role in the viral infection. So simple like flu infection, you have to not use any antibiotic, and you have to just wait and take advice of your doctor. If doctor advises antibiotic, then only you have to take it. Don't take it as your own medication. तो एंटीबायोटिक हैं बट हमें अपने मन से नहीं लेना चाहिए. एंटीबायोटिक हमें तभी लेना चाहिए जब डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट रहते हैं. कुछ एंटीबायोटिक के सीरियस साइड इफेक्ट रहते हैं, तो वो आप अपने को नहीं लेना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं लेना चाहिए. तो जैसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, जिस चीज़ की समझ नहीं है उसको अपने मन से शरीर के अंदर मत लीजिए. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. Good afternoon friends, myself Dr. Vijendra Ambadkar, orthopedic surgeon in medical center. Today we have displayed some very common conditions through which so many people suffer related to bones. So we have displayed so many posters, and we have displayed some bone wax models. So how we are going to fix the fractures. We have displayed the model of joint replacement surgery. We have displayed the model of total hip replacement surgery. And some general information we have displayed through the posters like osteoarthritis, osteoporosis, some common disorders like gout, tennis elbow and all. Thank you. डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग बोन के बारे में जनरल आदमी समझता है, वो समझता है कि कैल्शियम बहुत होना चाहिए तो बोन ताकतवर रहता है. बोन को स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज लाइक पोस्ट मेनोपॉजल वीमेंस में बोन लॉस बहुत जाता है, जिसके कारण उनके बोन्स बहुत वीक हो जाते हैं. छोटे से ट्रॉमा से उनको फ्रैक्चर हो सकता है. टू अवॉइड दैट कैल्शियम सप्लीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी कैन टेक द कैल्शियम. एक तो सप्लीमेंट से आप ले सकते हैं, या फिर ओरल इंटेक कुछ फूड्स रहते हैं जिसमें कैल्शियम कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, दैट यू कैन हैव. अलॉन्ग विद दैट डेली रूटीन एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू गेन द कैल्शियम. और हमें क्या चेकअप कराना चाहिए साल में? हम कौन सा ऐसा चेकअप कराएं जिससे हमको ये पता चले कि बोन जो है हमारी ठीक है?
साल में 2 साल में एक बार आपको डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, जिससे हमारे बोन में कितना ऑस्टियोपोरोसिस है उसका पता चलेगा। उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करा सकते हैं। देन ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं, विटामिन डी रहता है, सीरम कैल्शियम रहता है, सीरम फॉस्फोरस रहता है, उससे भी हमें पता चलता है कि बोन में कैल्शियम का कंटेंट कितना है। ओके, तो लेकिन अभी ये कोई एक एज आती है जिसके बाद में ये जनरली हड्डियां टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो एज डॉक्टर साहब कौन सा मोस्ट है? कॉमनली अबव 45 ईयर्स इन फीमेल एंड अबव 50 ईयर्स इन मेल बोन का वीकनिंग शुरू हो जाता है। तो इन दैट एज यू शुड डेफिनेटली डू सम इन्वेस्टिगेशन टू चेक आउट योर कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। ओके, तो मतलब 40 आया तो Yes. बोन का ध्यान रखना शुरू कर yes, दें। yes. थैंक यू डॉक्टर साहब, Thank थैंक यू you, वेरी thank मच। you. दिखाना चाहते हैं, स्पेशली आप क्या फोकस कर रहे हो उसमें? जो लेडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हम उनको फोकस कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर, तो कौन कौन सी टाइप के कैंसर होते हैं, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो उसमें अपने इंडिया में कॉमनेस्ट सर्वाइकल कैंसर है। प्लस हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हमारे पास मोड है, जैसे कि हम वैक्सीन दे सकते हैं, हम सेल्फ एग्जामिनेशन से उसको जान सकते हैं। प्लस जैसे यहाँ पे हमारे मेडिकल सेंटर में भी 35 ईयर्स के बाद हम पैप स्मीयर करते हैं, 40 के बाद हम मैमोग्राफी करते हैं, वो सब हम बता रहे हैं। फिर हम थोड़े हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्या होते हैं फीमेल की लाइफ में, उसमें एक PCOD करके सिम्टम होता है, तो उसका हम ये दिखा रहे हैं। फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे पोस्टर्स हैं, जिसमें हम प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब दिखा रहे हैं। और फिर इनफर्टिलिटी रिलेटेड भी है इंफॉर्मेशन, जैसे मेल इनफर्टिलिटी के क्या फैक्टर्स रहते हैं, मेल फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी के क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हो, तो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब वो क्या करते हैं, एक ओवर पिकअप कैसे करते हैं, स्पर्म्स का टेस्ट किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में जो है वो भ्रूण हत्या है, फीमेल फिटिसाइड, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो सब। तो ये सारा ओवरऑल हमने एक छोटे से पंडाल में पूरा हमारा लेडीज़ वार्ड का एक जर्नी रखा हुआ है। तो आज हम लोग शुगर लेस ये जो लाइफ जीना चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? मैं डॉक्टर जितेंद्र हूँ, ये डॉक्टर भाविन है। ये हम वाइटलिटी फेयर हर साल टाउनशिप के लोगों को इन्फॉर्मेशन, इस साल खास करके डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़, वो जैसे हम जानते हैं डायबिटीज़ दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। प्री डायबिटीज़ जो कि उसकी पहली स्टेज है, जब शुगर थोड़ा सा बढ़ता है पर दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती, ये सब के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। वो जैसे हम सब जानते हैं कि 10 में से 1 या 11 में से 1 आदमी को दुनिया में डायबिटीज़ है, 3 में से 1 को शायद प्री डायबिटीज़ है, उसको बढ़े जा रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज और कम शुगर कार्बोहाइड्रेट वाला खाने से कि प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ रोका जा सकता है और डायबिटीज़ वाले पेशेंट को उसका शुगर कम करने में फ़ायदा मिलता है। उसे हम ये बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट दिन का, 30 मिनट हमें मिनिमम एक्सरसाइज करना चाहिए। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग वो करें। कम शुगर वाला खाना खाए, जैसे कि मिठाइयाँ बंद करें, मिठाई, चीनी, आइसक्रीम वो सब कम करें। अपना चावल, आलू, जो ये सिंपल शुगर्स खाए जाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा खाए, जैसे कि फुल ग्रेन, जैसे रोटी वोटी, मल्टीग्रेन अनाज ज़्यादा खाएं। अनाज, हाँ, पूरा अनाज ज़्यादा खाएं और दाल और वो सब अच्छी तरह खाएं। अपनी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, कैबेज, पत्ता गोभी, वो सब ज़्यादा इंक्लूड करें, वो सबसे उन्हें फ़ायदा मिलता है। दाल वाल अनलिमिटेड खा सकते हैं, चावल, आलू ये सब कॉमनली वो कम करना है उन्हें। और वज़न कम करेंगे तो शुगर में बहुत उनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, ये हम संदेश देना चाहते हैं। तो अभी एक किस उम्र के बाद में डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्लासिकली टेक्स्ट बुक तो 40 बोलती है, पर इंडिया में जैसे अपन देख रहे हैं कि उससे जल्दी भी होता है। और वही वो शायद दैट इज़ रिलेटेड, ये शायद आजकल का जो अपना मोटापा बढ़ रहा है और जो खान पान में चेंजेस आ रहे हैं, यही अपन होल ग्रेन्स नहीं खा रहे हैं, अपने बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो इसलिए यंगर लोगों में भी हो रहा है। तो आई वुड से कि एवरीबडी आफ्टर 25 साल के बाद एक बार तो साल में शुगर चेक कराना ही चाहिए। 40 के बाद तो रिकमेंडेड ही है जी। और जब वजन बहुत बढ़ जाए उस टाइम भी शुगर अपना एक बार चेक करा लें। तो शुगर कितना आना चाहिए? शुगर जैसे अगर आप ये निकाल सके कि ये 3 चीज़ें होती है, HbA1c एवरेज 3 महीने का,
वो अपना नॉर्मल 5.7 5.6 तक नॉर्मल होता है। प्री डायबिटीज़ यानी जो बॉर्डर लाइन होने लगा है वो 5.7 से 6.4 तक बॉर्डर लाइन गिना जाए। 6.5 के ऊपर डायबिटीज़ है। बॉर्डर लाइन प्री डायबिटीज़ को डाइट एक्सरसाइज करना है, उसे दवाई की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ वाला डाइट एक्सरसाइज तो करेगा पर वो दवाई भी लेगा। फास्टिंग शुगर प्री डायबिटीज नॉर्मल 100 से कम है, 100 से 125 बॉर्डर लाइन है और 126 के ऊपर वो दवाई की रेंज में डॉक्टर की सलाह लेके। सेम चीज़ खाने के बाद का या 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद का 140 से नीचे नॉर्मल है, 140 से 199 बॉर्डर लाइन है और 200 से ऊपर ट्रीटमेंट की वो डॉक्टर से सलाह लेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने डायबिटीज़ को इतने सिंपल तरीके से समझा दिया। हेलो डॉक्टर्स, हेलो। आज हम लोग यहाँ टूथ बूथ में क्या समझने वाले हैं? आई एम डॉक्टर जानकी, दिस इज़ डॉक्टर धारा एंड नैना सिस्टर। हम यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन कि आपको कैसे ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है डे टू डे लाइफ में, चिल्ड्रन को क्या ध्यान रखना है और कौन से डिसीज़ होते हैं रिलेटेड टू टीथ एंड ओरल टू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ गोल्डन रूल्स फॉर गुड ओरल हेल्थ, दैट इज़ ब्रशिंग, हाउ टू ब्रश योर टीथ, scaling, मतलब every 6 months or 1 year you have to clean your teeth professionally. This is regular dental checkup for every 6 months and avoid sweets, chocolates and eat healthy foods. And this is related to children zone. कब कौन से दांत आएंगे बच्चों के, प्राइमरी टीथ एंड कौन सी कैविटीज़ होती है बच्चों में जो अलग होती है। दिस इज ऑल सेक्शन रिलेटेड टू डिसीज, कौन से कॉमन डिसीज है, सेंसिटिविटी, गम डिसीज एंड दिस DMJ प्रॉब्लम। ओके, तो अभी जब हम लोग मैम दांतों की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि रात में बिना ब्रश करके सोने से बहुत सारे दांत बच्चों के खराब हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? यस, तो बच्चों को, पेरेंट्स को पहले तो बच्चों को समझाना चाहिए। अबाउट 6 इयर्स बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि 2 बार ब्रश करना है, खाने के बाद एवरी टाइम गार्गल करना है और बिलो 6 इयर्स पेरेंट्स को ही ब्रश करवाना है। तो उससे क्या दांत अच्छे रहेंगे और कैविटीज़ कम होगी, प्लस स्वीट्स अवॉइड करना है। ओके, सो डॉक्टर साहब, आपने जो हम लोगों को बताया कि जब भी हम लोग इस तरह से कभी ब्रशिंग करने के लिए जाते हैं तो वो क्या चीज़ ध्यान में रख करके ब्रश करना चाहिए? एक तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक इज़ रिक्वायर्ड, पता होना चाहिए। एंड जब स्वीट्स लेते हैं आफ्टर बिटवीन 2 मील्स, मीन्स हमारा जब दोपहर का और रात का खाना होता है तो उसके बीच में जनरली अवॉइड करना चाहिए स्वीट्स एंड ऐसा फूड, और अगर लेते हैं तो आफ्टर दैट ब्रशिंग ज़रूरी हो जाता है। आज हम लोग फिजियोनेस्ट में क्या समझने वाले हैं? फिजियोनेस्ट में विल हैव अ ओवरऑल ऑफ फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली जो मिथ्स है उनके बारे में मैं ज़्यादा बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ बीमारी आ गई, तब जाके वो आते हैं हमारे पास। बट फिजियोथेरेपी शुरू होती है फ्रॉम डे 1, द डे यू आर बॉर्न, टिल द एंड योर डे लास्ट। सो जनरली फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम अ चाइल्ड टिल द एडोलेसेंट एज सब आता है। बेसिक एक्सरसाइजेज रहती है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस डेवलपमेंट है। सो वो सारी एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली करेंगे, उसके लिए भी आई विल गिव यू अ सिंपल आइडिया सर, कि बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। वी हैव मेनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज जो यू विल बी अ फिंगर काइंड ऑफ अ लेडी, सो यू नो यू विल बी इन अ ओकरा। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट लाइक आप एक बार डेफिनेटली एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, टेल योर प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेटली वो आपको ऐसे हेल्प कर पाएंगे जिससे आप डेफिनेटली आपको ही लगेगा कि नहीं एक्सरसाइज इज अ मस्ट थिंग। जैसे आप उठ के ब्रश करते हो वैसे आपको ऐसा फील होगा कि नहीं उठ के पहले एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। विल मेक श्योर ऑफ इट। मतलब कुछ बताना चाहती हैं कि हम लोग किस तरह से, कौन सी एक्सरसाइज से शुरू करें? आप उसको बेसिक एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हो। अभी एक्सरसाइज किया नहीं है तो उस हिसाब से उसको ना प्लान दिया जाता है एक्सरसाइज का। पहले फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग पे जाना है, देन कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज पे जाना है, देन एरोबिक्स और वो सब पे जाके वो धीरे धीरे आप बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी है या तो सीजर है, सो दिस ब्लू 4 पोस्टर ना दैट यू कैन डू इन बोथ स्टेट, राइट, इन नॉर्मल एंड इन सीजर।
एंड फिर धीरे धीरे दोनों की एक्सरसाइज अलग होगी एंड दिस इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट नेटल एंड वो जो रबर वाला पेट जो हो जाता है उसके बाद आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते। अगर आपने पहले भी एक्सरसाइज किया होता तो ये कंडीशन नहीं होती है एंड इट इज़ कॉल्ड diastasis recti, right? And what is the importance of exercise in menopause? It's a secret weapon against menopause symptoms like sleep problems, mood swings, depression and osteoporosis. And main exercise for menopause is Kegel exercise. ये अपना कैंसर जोन है। कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस की इंडिया में कौन से कैंसर्स कॉमन है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, लंग कैंसर। जिसमें गुजरात में जो ओरल कैंसर्स काफ़ी कॉमन है, इसका प्रिवेंटेबल है, मेनली टोबैको एंड अल्कोहल। ये दो चीज़ अगर हम कम कर दें, बंद कर दें, तो भी काफ़ी कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सभी कैंसर्स रिलेटेड, जैसे ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है, तो उसका मेन क्या क्या सिम्टम्स रहता है, जैसे कुछ वेट लॉस हो रहा है, लंबे टाइम से फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, जो स्टूल है उसमें ब्लड आ रहा है, या तो खाने में दिक्कत हो रही है, मुंह में कुछ अल्सर है जो हील नहीं हो रहा है, तो कैंसर हो सकता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। कैंसर में हम अगर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड ले, टोबैको, अल्कोहल वगैरह अवॉइड करें, तो कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके सिवा कुछ जेनेटिक चीज़ रहती है जिसको हम कुछ अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए थोड़े स्क्रीनिंग मेथड्स है, जैसे कि रेगुलर ओरल स्क्रीनिंग करें तो ओरल कैंसर का पता चल जाए। पेप टेस्ट रहता है, प्रोस्टेट के लिए PSA टेस्ट रहता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, मेमोग्राफी है। ये सब टेस्ट करने से कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है और उसको हम ट्रीट करें तो अर्ली स्टेज में अच्छा रिजल्ट आता है और आदमी हो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसके लाइफ स्पान में हम बढ़ा सकते हैं। कैंसर के वेरियस ट्रीटमेंट मोडलिटी अवेलेबल है, सर्जरी है, कीमोथेरापी है, रेडियोथेरापी है, वो सब अभी काफ़ी अच्छा, मतलब साइंस जो है वो काफ़ी आगे बढ़ा है, उससे हम जो पेशेंट है उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कुछ भी खराब अपने मुंह से खा करके शरीर को नहीं देंगे तो शरीर भी कहीं खराब नहीं होगा। राइट। तो हम लोगों को हैप्पीनेस, अ वे ऑफ लाइफ के लिए जो खाना है उसको अच्छा ही खाना है और कम मात्रा में खाना है ताकि शरीर तंदुरुस्त रहे। यस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।
help other people. डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए जानते हैं कि जनता को क्या समझ में आया आज। हेलो मैम, आपने अभी डॉक्टर साहब की बात को इतने ध्यान से सुना, तो अभी कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको आप शुरू करेंगे जो कल से एटलीस्ट किसी की आप हेल्प करने के लिए शुरू करने वाले हैं? जानबूझ के मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करूँगी, बन सके तो सबको खुश रखना चाहूँगी। ओके, बट ये तो बहुत मुश्किल काम है। सब लोगों को खुश रखना तो आसान नहीं होता, लेकिन इतना ट्राई करूँगी। हाँ, हम लोग अगर अपने पूरे मन से ट्राई करेंगे तो एटलीस्ट हमारे दिमाग को पता चलेगा कि हम लोग किसी की हेल्प कर रहे हैं, और किसी की हेल्प करने से हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, हम लोगों ने अभी बहुत सारे डॉक्टर से बात किया, और जब भी हम लोग किसी भी बारे में चेकिंग की बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और टेस्ट करवाते समय हम लोग को आना पड़ता है लेबोरेटरी में। तो मैं लेबोरेटरी जब भी जाना चाहूँगा तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लेबोरेटरी में क्या क्या तकनीक यूज़ होती है, और हमारे पास अब नई फैसिलिटीज़ क्या क्या आ गई हैं? चलिए मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूँ कि हमारे पास अभी क्या क्या फैसिलिटी है जो ऑलरेडी थी, और अभी कौन कौन से हम नई फैसिलिटी के साथ आए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपकी जो हमारी जो लैब है ये एनेबल एक्रेडिटेड लैब है। ये हमारे देश में सबसे बड़ा एक्रेडिटेशन है जो किसी भी लैब को अवॉर्ड किया जाता है। तो 2010 में 2010 में ही हमें, आज से 9 साल पहले हमें एक्रेडिटेशन मिला था। तो इसके बार हम 6 बार ऑडिट करवा चुके हैं, और अभी तक हमारा जो स्कोप है, जितना नंबर ऑफ टेस्ट 170 टेस्ट में हमारे पास है जो एनेबल के अंदर है हमारे स्कोप में, जो पूरे सौराष्ट्र में हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे पास है। तो हमारे पास जो भी टेस्ट होते हैं सारे एनेबल की तकनीक के हिसाब से, जो नियम है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से करते हैं। इसके लिए पूरा एक क्वालिटी का अपना प्रोग्राम है। इसमें कुछ हमें ऐसे सैंपल आते हैं बाहर से, देश से बाहर से हमें सैंपल आते हैं जिनकी हमें वैल्यू पता नहीं होती है, तो उनका हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो हम उसको सबमिट करते हैं। वो टेस्ट का रिजल्ट पूरे सारी जो दुनिया में जो बड़ी बड़ी लैब है उनके साथ में कंपेयर किया जाता है। तो हमें उसके बाद हमें एक तरह की ये रिपोर्ट देते हैं वो कि हम कहाँ पे हैं। तो अभी जो हमें 9 साल से हमें कंप्लीट 9 साल से लगातार हमें कि एक्सीलेंट रिजल्ट आ रहा है हमारा, कि हमारी बिल्कुल तकनीक में कोई खराबी कभी भी नहीं निकली है। इसके अलावा हमारे पास पूरा दुनिया में जो सबसे अच्छे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो अच्छी जो जितने वैक्यूम ट्रेनर्स और जितने सैंपल कलेक्शन डिवाइसेस हैं वो हम सब यूज़ करते हैं। तो हम जो स्टैंडर्ड जो चेयर है वो यूज़ करते हैं, और पूरा क्लोज टेक्निक से वैक्यूम ट्रेनर से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कि कहाँ से क्या लेना है। इसके बाद हमने जो हमारी जो लैब है उसको पहले हमने अलग अलग विभागों में विभाजित किया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, जिनमें हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अलग अलग विभाग है। तो हर विभाग में कुछ अलग अलग टेस्ट होते हैं जो हमने यहाँ डिस्प्ले किया है कि ये उस हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट के ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं, और ये सारे टेस्ट हम करते हैं। इसके अलावा आजकल हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपी पे काफ़ी ज़्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत सारा डायग्नोसिस हम माइक्रोस्कोपी पे कर देते हैं। जैसे कोई भी तरह का कोई मलेरिया है, फाइलेरिया है, इस तरह की डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपी के ऊपर हो जाती है। और जो जैसे हम कहते हैं कि शरीर में खून कम हो गया है, एनीमिया, तो एनीमिया में कौन सा टाइप का एनीमिया है, जैसे कि आयरन की वजह से है, या B12 के डिफिशियंसी से है, या फोलेट की डिफिशियंसी से, वो पता करते हैं। या किसी ब्लड कैंसर की वजह से एनीमिया हो गया है, वो भी हमें पता चल जाता है एनीमिया। इसके अलावा हम आजकल जो पेशाब जो बोलते हैं यूरिन, उसका टेस्ट भी हम मशीन के थ्रू करते हैं, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल रन करके तक जो लेटेस्ट टेक्निक है उस हिसाब से कर रहे हैं। और उसमें शुगर, प्रोटीन, उसके अंदर में कोई भी आपका रक्त कोनिका है, RBC, WBC, कोई भी कास्ट कुछ हो तो पता चल जाता है। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम अभी 100 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। तो हर ऑर्गन, हर अंग का जो भी अलग अलग तरह के टेस्ट है, वो सारे टेस्ट हमारे यहाँ कवर होते हैं। अभी जो बिल्कुल नया है जो हम अभी कर रहे हैं वो है किसी भी तरह की गांठ, किसी भी तरह का ट्यूमर, उसका डायग्नोसिस हम कर रहे हैं। तो उस गांठ और ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें वो ट्यूमर सामने दिखाई दे तो हम डायरेक्टली उससे सैंपल ले सकते हैं। नहीं दिखाई दे तो अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हुए स्क्रीन पे हम सैंपल लेते हैं, सैंपल को माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करते हैं। इस टेक्निक को कहा जाता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। बहुत सी छोटी सी सुई से, जिससे वो ट्यूमर को डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, आपको दर्द भी ज़्यादा नहीं होता है। और उसमें अलग अलग तरह की पिक्चर जैसे दिखाई देती है, और उसका जो माइक्रोस्कोप में जो पिक्चर दिखाई देती है उसके हिसाब से डायग्नोसिस होता है। तो जैसे मान लो कि आपको कोई ग्रंथि यहाँ पे फूल गई, तो उसका हमने जैसे एक एग्जांपल दिया है, तो ये दिखाता है कि आपको TB है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये दिखाता है कि कहीं और कैंसर था जो आपका यहाँ ग्रंथि में फैल गई है। और ये दिखा रहा है कि उसी ग्रंथि का कोई अपना कोई ट्यूमर है, लिम्फोमा जिसे कहते हैं। और ये है, इसका मतलब कि इसमें इन्फेक्शन है, पस भर गई। तो एक ही चीज़ की माइक्रोस्कोपी अलग अलग पिक्चर दिखा सकती है।
इसके अलावा जो कोई बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे होते हैं, गले में कोई खराश है, थूक में जो बैक्टीरिया होते हैं, किसी और भी चीज़ों में यूरिन में हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया किस तरह का बैक्टीरिया है, उसके कलर से, उसके फीचर से हम डायग्नोसिस करते हैं। तो कई कल्चर की रिपोर्ट आने से बहुत पहले हम बता सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और उसमें अगर टीबी है तो उसको थूक में तो टीबी का भी हमें डायग्नोसिस पता चल जाता है। तो बिल्कुल जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल और फ्लो चार्ट हम फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो तेज़ी से होने वाले टेस्ट, कार्ड टेस्ट वो, और ये जो किसी भी मेल पेशेंट्स में कोई भी जो इनफर्टिलिटी होती है, कोई बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसा जो शिकायत है, तो उस तरह के बेसिक टेस्ट भी हम यहाँ पे करते हैं। और फीमेल्स में, लेडीज़ में कोई कैंसर जो होता है, लेडीज़ का जो स्पेसिफिक कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उसका जो कलेक्शन और उसका माइक्रोस्कोपी, उसका वो सेम डे हमारे यहाँ पे एक ही दिन में उसका पूरा डायग्नोसिस हो जाता है। तो इंटरनेशनली, पूरा अंतर्राष्ट्रीय, पूरी दुनिया में जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं लेबोरेटरी में, जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको इकट्ठा करते हुए हम सारे प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने जो रिसेंटली 1 साल में डेवलप किया है, पिछले साल हमने दिसंबर महीने में ही ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट की है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 50 यूनिट ब्लड अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के हम यहाँ पे जमा रखते हैं हमेशा। तो किसी को भी कभी भी जरूरत पड़े तो आधे घंटे के अंदर उसको ब्लड दिया जा सकता है। हाँ, तो ये प्राइवेट सेटअप में सौराष्ट्र में पहला ब्लड स्टोरेज सेंटर है, जिसके साथ हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ टाइप है, हम ब्लड लेते हैं और उनको देते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह का रेफ्रिजरेटर होता है, इस तरह से हम ब्लड अलग के अंदर रख रहे हैं उसके अंदर। और ये मशीन से जो हम यूज़ करते हैं उसके टेस्टिंग में, कि दोनों का डोनर और पेशेंट का मैच करके ब्लड फिर हम दे पाते हैं। इसके लिए अभी हम आजकल हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप है, हम गवर्नमेंट को ब्लड देते हैं अपनी तरफ से, तो वो हमें ब्लड देते हैं स्टोर करने के लिए हमारे पेशेंट के यूज़ के। और ये एक है बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी मशीन से हम ये करते हैं कि कोई भी जो अलग अलग जो केमिकल्स है, बेंजीन, उस केमिकल्स में काम करने वाले आदमी को कोई उससे बेंजीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, उसको टेस्ट करने के लिए हर महीने टेस्ट किया जाता है। और उसका यूरिन का सैंपल में फिनोल का टेस्ट किया जाता है। अगर वो एक लेवल से ज़्यादा है तो उसे हम उसको एडवाइस करते हैं कि वो काम छोड़ के दूसरा काम तो इस तरह का। और अभी जो नए जो गैस आ रही है हमारे प्लांट में, सीन गैस वगैरह, तो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई एक्सपोजर हो, ऐसा कुछ हो, कोई गैस है, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड से। तो ये फैसिलिटी नहीं है, यहीं पे होती है हमारे यहाँ लेबोरेटरी में, रिलायंस की हमारी मेडिकल लेबोरेटरी में ही ये सारा कुछ हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। और सिटी स्कैन में क्या है कि आपको रेडिएशन का एक एक्सपोजर का एजर्ट रहेगा, एमआरआई में रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं रहेगा, तो एमआरआई उस टाइप से बेनिफिट है। सिटी स्कैन से एमआरआई थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, पर सिटी स्कैन ज़रूरी इस चीज़ में है कि जब आपको हेड इंजरी हुआ, जो फ्रैक्चर का इंजरी हुआ, कोई चोट लगा, हेमरेजिक साइन है, उसमें सिटी स्कैन ज़्यादा बेटर है। कंटिन्यूस आपको लोअर बैक पेन है, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है, तो उसके लिए एमआरआई ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी रिक्वायरमेंट मेमोग्राफी हम अपने यहाँ पे करते हैं कि जो अबाउट 35 ईयर्स की लेडीज़ रहती है उनको मेमोग्राफी करते हैं, तो उनको ब्रेस्ट के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। जब अबाउट 35 एज रहेगा उसके बाद फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, तो उसमें हम लो एक्सपोजर पे जो एक्सरे ही लेते हैं, पर लो एक्सपोजर एक्सरे यूज़ करके उनके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। तो अपने जो यहाँ पे स्पाउस चेकअप होता है ना, तो अबाउट 35 वुमन रहेगी, उनका ऑटोमेटिक स्पाउस चेकअप में भी हम इंक्लूड कर देते हैं कि उनका मेमोग्राफी करने के लिए। 2 साल के कराना 10 साल कराना नहीं, एवरी 2 ईयर्स पर गाइडलाइन। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है कि कुछ मतलब फीलिंग आ रही है कि कुछ तो बीमारी है, तो फिर हर साल भी कर सकते हैं, एवरी 6 मंथ भी कर सकते हैं। अदरवाइज हेल्दी पर्सन है, कोई प्रॉब्लम है, एवरी 2 ईयर्स करना रिकमेंडेड, तो उसमें भी रेडिएशन डोज तो रहता ही, लेकिन बिल्कुल लो रहता है। सोनोग्राफी से कर सकते हैं, मेमोग्राफी ये दोनों कंबाइन करके करना है एज पर न्यूअर गाइडलाइन। सोनोग्राफी में रेडिएशन नहीं रहता, साउंड वेव पे वर्क करता है। लाइक हम जो सुनते हैं वो किलोहर्ट्ज, 20,000 किलोहर्ट्ज में साउंड रहता है, सोनोग्राफी में मेगाहर्ट्ज में साउंड रहता है, तो अपने ऑडिबल रेंज से काफ़ी ऊपर रहता है। सोनोग्राफी एकदम डिफरेंट कंसेप्ट है। सोनोग्राफी है ना, प्रेगनेंसी में सेफ है। सोनोग्राफी में रेडिएशन का कोई एक्सपोजर का चांसेस नहीं है। सिटी स्कैन है, एक्सरे है, ये सब हम प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते, अवॉइड करना है। सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में सेफ है, सोनोग्राफी कभी भी करवा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। खाया, अंदर क्या हुआ, ब्रेक होके छोटा छोटा अमीनो एसिड बन गया, फिर लीवर उसको फिर प्रोटीन में बनाता है। कभी हमने जो प्रोटीन खाते सीधा प्रोटीन हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर जाके लीवर उसको प्रोटीन में बनाता है। तो इतना करामती हमारा शरीर है, उसमें पेट इतना करामती काम करता है, कभी आपने सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो ये इंटेस्टाइन के बाद, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जब जो जितने भी वाइटल चीज़ें होती है शरीर के अंदर आ जाती है।
जाती है, फिर हमको शरीर को वो शक्ति देती है, प्रोटीन बनाती है, फैट बनाती है, कैलोरी भी देती है, हमको एनर्जी देती है ना, ग्लूकोज बनाती है, ग्लाइकोजन बनाती है, ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल्स बनाती है। और जो बच्चा कुचा होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वो फिर मल के रूप में बाहर निकलता है। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, लेकिन जब उसमें प्रॉब्लम आता है, जब डिजीज़ होता है, तो ये सब गड़बड़ा जाता है। हम कैसे पता करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको पेट में दर्द होने से हमको कैसे पता चलेगा कहाँ से दर्द हो रहा है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके पेट को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, राइट ऊपर, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर एंड लेफ्ट लोअर। और उसके अंग जितने भी अंदर, सभी क्वाड्रेंट्स के अंदर जितने भी अंग है, उसको हम स्टडी करते हैं। जब हम पढ़ते होते हैं तब उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। जैसे कि राइट अपर पार्ट है, उसके अंदर लीवर होता है, गॉल ब्लैडर और पित्ताशय थैली होती है, फिर स्टमक का थोड़ा पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 अंग यहाँ होते हैं। ऐसा लेफ्ट साइड में, राइट लोअर में, सब जगह अलग अलग पेट के अंग होते हैं। जब भी इसमें प्रॉब्लम होता है तो हम उसकी पैथोलॉजी के ऊपर स्टडी करते हैं कि ये अगर यहाँ पेन है तो इसमें ये डिजीज़ हो सकता है। अब जब पढ़ने के बाद आगे हम 3rd ईयर में जाते हैं MBBS में, तब हम जाके वो डिजीज़ को हम डायग्नोस करना सीखते हैं। लेकिन हमारे लिए आसान नहीं होता है वो डायग्नोस करना। हम कैसे करते हैं? आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपको पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है, तो आप बताओ कि मेरे को दर्द हो रहा है। फिर हम पूछते हैं आपको वॉमिटिंग हो रही है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ वॉमिटिंग भी हो रही है। फिर आपको बोलेंगे आपको भूख कम लग रही है, आप बोलेंगे भूख भी कम लग रही है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, उसको हम पहले इलेसिट करते हैं, आपसे पूछते हैं। पूछने के बाद क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स होंगे तो कौन कौन से रोग होंगे, और जहाँ आपका पेन है तो वहाँ कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उसको हम रिलेट करते हैं। फिर जाके हम क्या करते हैं कि आपको कुछ टेस्ट भी लिख के देते हैं। अभी हमको लग रहा है कि आपको अपेंडिक्स का इन्फेक्शन, आपको गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन है, आपको लीवर का इन्फेक्शन है, ठीक है। वो हमारे जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होते हैं, हमने जो जांच करके आपको बताया, वो जो इन्वेस्टिगेशन उसको रिलेट करता है। फिर जब हम स्टैम्प करते हैं कि हाँ ये रोग होगा, फिर जाके हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतना सारा टेस्ट करने के बाद सब नॉर्मल आता है, फिर भी हमारे पास पेशेंट आता है कि मेरे को पेन तो अभी कम हो ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर पेन को खोलते हैं, पेंडोरा बॉक्स को खोलते हैं, तब जाके पता चलता है कि इसको तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा भी होता है, इसलिए हम इसको पेंडोरा या मैजिकल बॉक्स या माइस्ट्री बॉक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पेट की जानकारी के लिए जितने भी हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, हमारे ज्ञान से प्लस इन्वेस्टिगेशन से हमको हम कोरिलेट करते हैं, तभी जाके हम किसी रोग के निदान के ऊपर जाते हैं। एब्डोमेन के रोग को डायग्नोस करना इतना आसान नहीं होता है हमारे लिए, इसलिए आपको हमेशा अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने में आप अच्छी चीज़ें खाइए और एक्सरसाइज करिए, ताकि कोई भी रोग आपको हो ही नहीं। और हो तो क्या करना है, आपको किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, घर बैठे रहना नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रोग एडवांस हो जाता है, चाहे वो सादा रोग या कैंसर का रोग हो, तो एडवांस स्टेज में आ जाए तो डॉक्टर भी इसका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर नहीं पाते, समझ गए। तो ये जो पूरा जो जोन है, इसके अंदर यही सभी चीज़ें आपको दिखाई गई है, और वीडियोज़ में भी हम वही चीज़ें दिखाएंगे जो आपको समझाया गया है। तो ध्यान से आप समझ लीजिए और फिर वहाँ वीडियो में भी देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। आइए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम यमदेव। माता देवी, हमने तो आपको मीटिंग का इनवाइट नहीं भेजा था। और चित्रगुप्त जी कहाँ है? चित्रगुप्त जी कहाँ है? प्रभु, चित्रगुप्त जी है ना, वो गए छुट्टी पे। क्यों? दिसंबर की छुट्टियां है ना, लेट हो रही थी, तो सारा काम मुझे देके चले गए। देखो देखो प्रभु, मैंने कई वर्षों से एक छुट्टी नहीं ली है, 24/7 पृथ्वी के ऊपर काम करता हूँ। और ये चित्रगुप्त जी है ना, बार बार देव जी, हम इस साल के अपने घर में आपका ध्यान रखेंगे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। और हम कहाँ जाइए?